Good morning, student. Today we are going to discuss the next unit, that is about the digital modulation technique. In last year, we were discussing about the different type of the modulation technique, means how the modulation can be classified. As we know, modulation divided into the two part, like the analog modulation and digital modulation. In analog modulation हमने डिस्कस किया था about the amplitude modulation, then angle modulation. In angle modulation there is the two modulation, phase modulation and frequency modulation. And now in your subject digital communication, there is the modulation, the name is the digital modulation. So first of all, I'm going to explain what is the difference between the digital modulation and analog modulation. As we know, first of all, I'm going to explain what is the modulation. Modulation is a process in which some characteristic of carrier signal is changed in accordance with the message signal. Characteristic like amplitude, phase, frequency changes in accordance with the message signal. As we know, in analog communication, the message signal is like that. आपने पढ़ा भी होगा, जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है जस्ट लाइक आपका वेव फॉर्म होता है, इस तरीके से ऐसे आपने बना लिया, दिस इज योर मैसेज सिग्नल. ठीक है. नाउ इन डिजिटल सिग्नल द लाइक द मैसेज लाइक इन द डिजिटल वेव फॉर्म, लाइक फॉर वन हो गया, जीरो के लिए जीरो, अगेन वन, इस तरीके से होता है, 1 0 1. तो दिस इज एनालॉग एंड दिस इज डिजिटल. नाउ तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द एनालॉग मॉड्यूलेशन एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन, इन विच हियर द मैसेज सिग्नल in analog modulation, the message signal simply a sine wave or cosine wave, and but in the digital modulation the message signal is in the digital form, like is the pulses of the rectangular pulses of the any amplitude according to the requirement as shown in the figure. ये आपका मेन डिफरेंस है. और ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी कर चुका हूँ कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन ओवर द एनालॉग कम्युनिकेशन. ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस कर दिया है हमने. ठीक है. तो नाउ अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल हियर ऑल्सो देयर आर द डिफरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक्स विच आर यूज्ड इन द डिजिटल मॉड्यूलेशन, लाइक ASK, PSK, FSK, QPSK and so many are also there. But in your syllabus there are the 4 type. There are the 5 type, means ASK, BASK, BPSK, BFSK, DPSK and QPSK. These are the 5 modulation technique and which are used in the digital communication. Now let us consider one by one. Here we take the one by one modulation technique and discuss with what is the modulation process and how it can be demodulated at the receiver. So today we are going to discuss about the ASK. Now first of all, I'm going to explain what is the full form of ASK. ASK and stand for amplitude shift king, already written here. ASK stand for amplitude shift king, and as we know, in your syllabus there is written like that, ASK. B means होता है binary. As we know, binary means here the number which are used to indicate that is in the form of 0 and 1. तो हम 0 और 1 की हेल्प से हम यहाँ पे डाटास को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, इसलिए और बाइनरी ASK का यहाँ पे नाम दिया गया है. Now after that, what is the first of all I'm going to see the modulation technique with the help of the diagram. Let us consider the message signal 1 0 1 0 and 1, and then this message can be presented in the message signal by using the line coding, like here NRZ which are used, NRZ unipolar NRZ here are used, and there is the 2 labels which are used to indicate the binary forms, that is 0 or A. That is the one is represented by the some duration of the amplitude A, and 0 is represented by the 0. तो सिमिलरली यहाँ पे यूनिपोलर एनआरजेड लेवल्स को यूज किया गया, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा किस तरीके से. एंड आफ्टर दैट
And after that, now this is the digital signal, and after the carrier signal, simply cosine. Here we are using the cosine wave. ये आपको दिख रहा है, ये आपका एक कोसाइन वेव है जहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, और एक कंप्लीट एक ड्यूरेशन में दो आपके कंप्लीट वेव्स के यहाँ पे दिखाए गए हैं, दो कंप्लीट कॉस वेव्स को दिखाए गए हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आपको ये पता है कि यहाँ पे सिंपली सुपर इम्पोज होता है, सुपर इम्पोज होता है आपका यहाँ पे मैसेज को हम सुपर इम्पोज करते हैं कैरियर सिग्नल के साथ, एंड फाइनली वी गेट द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो आपने यहाँ पे क्या परफॉर्म किया, अगर आपको दिख रहा आप चीज़ अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व, इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग द फिगर हियर, नाउ दिस इज़ द डिजिटल फॉर्म, दिस इज़ द डिजिटल सिग्नल बाय यूजिंग द यूनिपोलर एनर्जेड, and this is the carrier signal is of the cosine wave form, or here in one single bit duration there is a two complete cycle, there is a two complete cycle, means here two complete cycle of cosine are completed. Now what is the modulated and what is the waveform of ASK? ASK simply आपका होता क्या है कि जहाँ जहाँ हमारा वहाँ पे वन है वहाँ पे आपको कैरियर सिग्नल मिलेंगे, लेकिन जहाँ पे आपके जीरो है वहाँ पे आपको कैरियर सिग्नल नहीं मिलेंगे। जस्ट लाइक इफ़ यू सी हियर, आप यहाँ देख रहे होंगे, ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे आपका वन था तो यहाँ पर आपको कैरियर सिग्नल मिल गया, बट यहाँ पे जीरो था, देखिए आपको यहाँ पे कैरियर सिग्नल नहीं मिला। सिमिलरली हियर वी गेट ऑल्सो द कैरियर सिग्नल एंड हियर वी आल्सो गेट द कैरियर सिग्नल। मीन सिंपली वी कैन से हियर कि अगर हमें वन को ट्रांसमिट करना है तो सिंपली जो कैरियर सिग्नल वो पास होगा, और जीरो वाले केस में हमारा कैरियर सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होगा। तो और इसको हम ऑन ऑफ सिग्नलिंग भी कहते हैं, जस्ट लाइक इस मॉड्यूलेशन टेक्निक को हम ऑन ऑफ सिग्नलिंग भी कहते हैं, बिकॉज अगर आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हो, आप फिगर को अगर ऑब्जर्व करिए आप, तो इस फिगर में दिस पार्ट इज़ ऑन एंड दिस पार्ट इज़ ऑफ, ये ऑन ऑफ कंडीशन का यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। नाउ इन एस के दैट इज़ वनली one unit energy carrier and it switch on off depending upon the input binary waveform। तो in ASK there is only one unit energy, एक ही यूनिट एनर्जी आपका होता है, ठीक है, और उसको स्विच करते हैं, ऑन ऑफ स्विच करते हैं डिपेंड अपॉन व्हाट विल बी द इनपुट बाइनरी सीक्वेंस। नाउ यस एंड व्हाट अकॉर्डिंग टू द ASK वेवफॉर्म ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, जैसे वेवफॉर्म कैसा होगा। नाउ टू ट्रांसमिट वन ST इज इक्वल टू, दिस इज द इक्वेशन, ST is equal to A cos 2 pi FCT, here cos signal, A is amplitude. Now in the form of the energy, as we know, the power of the signal is equal to होता है amplitude square by 2। Now simply amplitude को अगर हम करना चाहें तो अंडर रूट 2 PS होगा। Here we get the amplitude अंडर रूट 2 PS and write अंडर रूट 2 PS in place of A, and after this cos 2 pi FCT। तो आपको यहाँ पे चीज़ें ऑब्जर्व हो रही हैं किस तरीके से, जब हम सिग्नल वन को हम जब ट्रांसमिट कर रहे हैं, देन दिस इज़ द कंप्लीट इक्वेशन फॉर द मॉड्यूलेटेड सिग्नल एंड फॉर ट्रांसमिटिंग जीरो एंड ST इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आपको दिख भी रहा होगा कि हमें वन जब भेज रहे हैं तो हमारा इक्वेशन है और जीरो पे इक्वेशन आपका नहीं है, ठीक। After that there are some modulation technique which are used to for the generation of the ASK signal, and also the some detection technique are used to get the original message signal. Now here is the process I am going to discuss about the generation or transmitter of the ASK signal. Here we are using the product modulator, and in product modulator there is the input message which is in the unipolar format, already मैंने discuss किया था, and also here we take the carrier signal वही carrier signal AC cos 2 pi FCTT, and after multiplication we get the modulated waveform, and this modulated waveform pass through the band pass filter, and we get here आउटपुट ASK, ये आपका ASK का आउटपुट हो जाएगा। सिंपली बहुत सिंपल यहाँ पे है, आपको यहाँ पे इनपुट मैसेज को यूनिपोलर एनर्जेड में कन्वर्ट करना है,
एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर लेना है, सिंपली वो दो सिग्नल को मल्टीप्लाई करता है। दो सिग्नल हमारे क्या क्या हैं, एक हमारा इनपुट मैसेज है जो यूनिपोलर फॉर्मेट में है, और कैरियर सिग्नल, उनको हमने मल्टीप्लाई किया, एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एंड वी गेट द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एंड दिस मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज पास थ्रू द बैंड पास फिल्टर, एंड फाइनली वी गेट द आउटपुट जो होगा वो एस के फॉर्म में आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल फिगर है। ठीक है, एंड यार यहाँ पे आपको देख लीजिए क्या मेंशन किया गया है, एस के सिग्नल में बी जनरेटेड बाय अप्लाइंग द incoming binary data in the unipolar enoded format and the sinusoidal carrier to the two input of product modulator, and modulator will cause the shift of the baseband signal spectrum। तो मॉड्यूलेशन के हेल्प से क्या होता है कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है, देयर इज द शिफ्टिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, तो ये काम आपका वही कर रहा है। तो ये जो कंप्लीट आपको जो यहाँ पे फिगर अगर आपको ऑब्जर्व हो रहा हो, ये जो कंप्लीट आपका फिगर है, ये कंप्लीट फिगर आपका जनरेशन ऑफ द ट्रांसमीटर ऑफ द एस के सिग्नल, ये इसका रहा। ठीक है, बहुत सिंपल फिगर है, इसमें खास कुछ आपको ब्लॉक्स भी नहीं है, 2-3 ब्लॉक्स आप इजीली उसको याद कर सकते हैं। Now after that, next the detection part, and detection part is also divided into the two part, coherent and non-coherent. Now in the coherent detector, here we are using the same carrier which are used at the transmitter side, and now the first part is the coherent detection and the demodulation of the binary ASK signal. Now here is also the simply multiplication of the two signals, like the ASK हमारा जो यहाँ से जनरेट हुआ था, that is from transmitter side ASK, and here coherent carrier। हियर वर्ड कोहेरेंट कैरियर मीन्स ये जो कैरियर हमारा यूज होगा, इस कैरियर की जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो इनिशियल में हमने ट्रांसमीटर साइड में हमने जो कैरियर फ्रीक्वेंसी यूज किया था, मीन्स हमने क्या यूज किया था, cos 2π fct। तो जो फ्रीक्वेंसी आपका यहाँ होगा वही फ्रीक्वेंसी आपका यहाँ होगा, इसलिए यहाँ पे कोहेरेंट डिटेक्टर का नाम दिया गया है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको इंटीग्रेट करना है, देयर इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t0 dt, एंड इंटीग्रेट करने के बाद, एंड आफ्टर दैट देयर इज द डिसीजन डिवाइस इन विच देयर इज द थ्रेशोल्ड लेवल after integration, and if you get the any value and greater than that threshold value, then message signal या आपका 1 होगा, and when the after integration the value is less than some threshold value, then message will be 0। तो ये डिसीजन डिवाइस आपका ये यहाँ पे ये डिसाइड करता है कि हमारा मैसेज क्या रहा होगा, 1 रहा है कि 0 रहा है, ये होता है। तो आफ्टर दैट ये जो डिसीजन डिवाइस आपके जितने भी आपके डिमॉड्यूलेशन टेक्निक हैं आपके डिजिटल मॉड्यूलेशन में, वो सब में यूज होगा। उनका वर्क बस यही है कि जो भी उन पे इनपुट पे डाटा आ रहे हैं, वो एक थ्रेशोल्ड लेवल से कंपेयर करके और उनके वैल्यूज़ को बताते हैं कि आउटपुट हमारा बाइनरी 1 रहेगा या 0 रहेगा। ठीक है, तो वही है, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं जो चीज़ें भी बताया मैंने आपको। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या है, द इनपुट टू द प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर आर मॉड्यूलेटेड एसके सिग्नल, जो ऑलरेडी हमारा जो ट्रांसमीटर से आ रहा है, एंड लोकली जनरेटेड कोहेरेंट कैरियर, लोकली जनरेटेड कोहेरेंट कैरियर। लोकली जनरेटेड कोहेरेंट कैरियर मीन्स लोकली उसको एट टाइम वहाँ पे हम जनरेट करेंगे, और कैरियर वही होगा जो कैरियर हमारा ट्रांसमीटर इन पे यूज हुआ था। ठीक है, the output of the product modulator is given to the integrator which perform the low pass filtering action। तो जो हम इंटीग्रेटर का हम यहाँ दे रहे हैं, जो आउटपुट मॉड्यूलेटर का जो आउटपुट है जो हम इंटीग्रेटर से पास कर रहे हैं, तो इंटीग्रेटर से पास करने के बाद वो परफॉर्म करेगा, लो पास फिल्टरिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, एंड आफ्टर दैट द आउटपुट ऑफ द इंटीग्रेटर गोज टू द डिसीजन डिवाइस, सैम्पल एंड होल्ड सर्किट एंड कंपेटर सर्किट। ठीक है, तो डिसीजन डिवाइस बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ द सैम्पल एंड होल्ड सर्किट एंड कंपेटर सर्किट, इन विच जो भी इंटीग्रेशन के बाद या लो पास फिल्टरिंग के बाद जो भी हमारे आउटपुट्स आ रहे हैं वो हमारे उसका इनपुट होगा। इंटीग्रेटर का आउटपुट जो होता है वो गोज टू द डिसीजन डिवाइस, एंड डिसीजन डिवाइस कंप्राइजेज ऑफ द सैम्पल एंड होल्ड सर्किट एंड कंप्यूटर सर्किट वहाँ पर है, एंड इट मेक अ डिसीजन इन फेवर ऑफ सिंबल 1 व्हेन थ्रेशोल्ड इज एक्सीडेड, एंड इन फेवर ऑफ 0 व्हेन द
इनका सिंबल जीरो अदरवाइज। तो दो ही केस होना है, मीन्स जो वैल्यूज आएगी या तो वो थ्रेशोल्ड लेवल से एक्सीड करेगा या तो वो थ्रेशोल्ड लेवल से कम होगा। तो ये वही एक्सप्लेन करना चाह रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ कह सकते हैं किस तरीके से मॉड्यूलेशन मल्टीप्लाई होने के बाद एक इंडिकेटर से पास होगा जो लो पास फिल्टर की तरह वर्क कर रहा है। फिर डिसीजन बॉक्स में ये डिसाइड करना है कि हमारा वो इन फेवर ऑफ 1 है कि इन फेवर ऑफ 0, डिपेंड अपॉन द वैल्यू विच एक्सीड द थ्रेशोल्ड लेवल और नॉट। नाउ आफ्टर दैट now the advantage of ASK the first advantage is the simple circuit, इसका सर्किटरी बहुत सिंपल है। सेकेंड वन इजी टू जनरेट एंड इजी टू डिटेक्ट। ऑलरेडी आपने अभी जब मैंने एक्सप्लेन किया आपने समझा कि ये सिंपल सर्किट है, उसको जनरेशन में और डिटेक्शन बहुत इजी सर्किट है। ऐसा ड्रॉबैक क्या है आपका ASK का ड्रॉबैक अगर आप ऑब्जर्व करें, मीन्स ड्रॉबैक ASK इज वेरी सेंसिटिव टू द नॉइज़, इज वेरी सेंसिटिव टू द नॉइज़, मीन्स इस पर नॉइज़ का काफ़ी इफेक्ट होता है। मीन्स अगर आप ESK के थ्रू अगर किसी मैसेज को आप ट्रांसमिट करते हो वाया चैनल, then highly this message can be highly affected by the noise when the movement through the channel. It is used at very low bit rate, इसका bit rate भी बहुत कम होता है। इस वाले मॉड्यूलेशन टेक्निक का bit rate बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो ये आपके दो डिसएडवांटेज डिस्कस कर दिया गया ASK का। आई थिंक सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। Now one more detection of the non-coherent detection of the ASK and using the analog detector. तो analog detector ऑलरेडी जब आप लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ा होगा एनालॉग कम्युनिकेशन में, तो आप लोगों ने एनालॉग डिटेक्टर्स का यूज किया होगा। और एनालॉग डिटेक्टर का बेसिकली मैं सर्किट में एक्सप्लेन कर दूँ, पहले सर्किटरी में है क्या इसके। Now here is the incoming signal and then band pass filter, then analog circuit detector basically comprises of the rectifier and low pass filter and then decision device and finally the output signal, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनालॉग डिटेक्टर का यूज किया गया बेसिकली इट कंप्राइजेज ऑफ द रेक्टिफाइड सर्किट एंड द लो पास फिल्टर एंड ऑलरेडी इनकमिंग सिग्नल आर पासेस थ्रू द बैंड पास फिल्टर, वो चीज़ें लिखी गई हैं। एज यू नो इन बाइनरी ASK केस द ट्रांसमिटर सिग्नल इज डिफाइंड एज XT इक्वल टू √2 PS cos 2 pi FCTT। ये आपका जो इक्वेशन है सिर्फ बाइनरी 1 के लिए है और 0 के लिए उसकी वैल्यू 0 होती है, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोसेस आपका हो क्या रहा है हमें यहाँ पे वो डिस्कस करना है। अगर आप देखें यहाँ पे बाइनरी ASK सिग्नल कैन आल्सो बी डिमॉड्यूलेटेड नॉन कोहेरेंट यूजिंग द एनालॉग डिटेक्टर। नॉन कोहेरेंट यहाँ पे वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि पिछले कोहेरेंट वाले केस में आपने कैरियर सिग्नल्स का यूज किया था, बट इन दैट केस हियर द कैरियर सिग्नल आर नॉट यूज। यहाँ पे कैरियर सिग्नल्स को यूज नहीं करेंगे, इसलिए ये नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन का नाम दिया गया आपका यहाँ पे। और बेसिकली ये जो हम डिटेक्शन करेंगे यूजिंग एनालॉग डिटेक्टर करेंगे। Now the non-coherent detection scheme do not require the phase coherent local oscillator। वही मैंने जो बोला कि हमें यहाँ पे phase local oscillator की रिक्वायरमेंट नहीं है। And this method involve some form of rectification and low pass filtering at the receiver। मतलब मीन्स यहाँ सिंपली ये मेथड तो इन्वॉल्व करता है रेक्टिफिकेशन सर्किट होना चाहिए और प्लस लो पास फिल्टरिंग सर्किट होना चाहिए एट द रिसीवर में। दिस ग्रेटली सिंप्लीफाइज द डिजाइन कंसिडरेशन रिक्वायर्ड इन सिंक्रोनस डिटेक्शन। तो जो इसके पहले हम लोगों ने जो कोहेरेंट डिटेक्शन पढ़ा था तो उस कोहेरेंट डिटेक्शन को हम सिंक्रोनस डिटेक्शन का भी नाम देते हैं। तो बेसिकली ये जो वो सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था विद रिस्पेक्ट टू दैट नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन। यहाँ पर वही लिखा हुआ है दिस द ग्रेटली सिंप्लीफाई द डिजाइन कंसिडरेशन एंड रिप्रेजेंट द इन सिंक्रोनस डिटेक्शन, ओके। नाउ
ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका एएसके पे है। फॉर ए गिवन मैसेज सिग्नल एम टी इज इक्वल टू 10 1 0 ड्रा द एएसके वेव फॉर्म। बहुत सिंपल आपका है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द मैसेज सिग्नल आप बना लिया आपने, फिर उसको यूनिपोलर एनॉर्डेड में कन्वर्ट कर लिया। एंड आफ्टर दैट हियर टेक द कैरियर सिग्नल आप ये ध्यान देंगे 1 बिट ड्यूरेशन में पूरा 2 कंप्लीट साइकिल आपका होगा। एंड आफ्टर दैट एएसके सिग्नल क्या होगा, तो जहाँ जहाँ आपका 1 है वहाँ पे आपको कैरियर सिग्नल मिल जाएंगे, और जहाँ पे आपका 0 वो आपका नहीं मिलेगा। तो यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया और यहाँ मिल गया, ठीक है। जहाँ जहाँ 1 मिल गया, बाकी सारे प्लेस पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे कंक्लूड करूँ, एएसके आपका बहुत एक सिंपल मॉड्यूलेशन टेक्निक था, और इसमें आपने सर्किटरी भी देख लिया क्या है, किस तरीके से वेवफॉर्म मिल रहा है। और फिर आपका यहाँ पे डिटेक्शन प्रोसेस के लिए 2 है, कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट है। डिपेंड अपॉन वो किस तरीके से आपको वहाँ पे यूज करना है वो आपने कर लिया, और आपने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिया, वेवफॉर्म डिस्कस कर लिया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। ओके, थैंक यू।